Okay. Today we will cover the last topic of the Unit 1, Dr. Code's rule. Okay. Today we will cover the last topic. So our Unit 1 is completed today. Okay. Uh, Up to now we have learned about basics of DBMS. Okay. What is data? What is database management system? Advantages, disadvantages. Then uh, components, applications, okay, architectures, types of architecture, DBMS, then database schema, physical schema, logical schema, okay, aggregation, generalization, database models, different types of database model, hierarchical, network, then ER diagram, relation models, okay, all models we had covered. Then we studied the ER model in detail. Okay, we also showed the example of the ER model. Practically, we have completed ER model also. Okay, then inheritance, generalization, okay, specializations, all these concepts we have completed in the unit one. Now, this is the last uh, topic. Okay, wait, I'm sharing the screen. So our today's topic is codes 12 rules. Okay, codes 12 rules. Now, what is this codes 12 rules? The codes. Okay, the code is a name of a person. Dr. Edgar F. Code. Okay, it is a name of person. Okay. After this extensive research on the relational model of database system, came up with 12 rules of his own, which according to him, a database must obey in order to be regarded as a true relational database. This means this person find the some rules. Okay. Why? For proving the database as a relational database. Okay. When we are creating the database, okay, when we are creating the database, and if we want to make this database relational, okay, then our database must be follow the 12 rules. Okay, this is a person. Codes is a person. Dr. Edgar F. Code is a person. He defines some rules. Okay, 12 rules. He defines some rules. How many rules? 12 rules. Why? To prove the database as a relational database. ठीक है, database को relational database prove करने के लिए he has defined 12 rules. If our database हमारा जो database है ये 12 rules follow कर रहा है, then we will say that our database is relational database. Okay, now what is the meaning of relational database? What is the meaning of relational database? Who will tell? Hmm? What is the meaning of relational database? Okay, what is database? पहले बताओ मुझे, what is database? Hmm? What is database? Database is organized data Hmm? and structured data. Organized collection of A structured collection data. of unstructured data. Yes. Okay. The database is a organized, or you can say collection of the structured data. Okay. And database management system, okay, we can it is a systematic way. Okay, it is a systematic way of storing, updating, removing and retrieving the data. Okay, it's called the database. Now, what is the DBMS we know, but relational databases. Okay, there are two types of databases. There are two types of databases. है एक तो रिलेशनल डेटाबेसेस है एंड द सेकंड इज नॉन रिलेशनल डेटाबेस. कौन सा डेटाबेस? नॉन रिलेशनल डेटाबेस. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस वी नो. अभी हमको पता है कि व्हाट इज डेटाबेस. there are two types of database: relational database and non-relational database. Okay, relational and non-relational database. If you want to make your database relational, ठीक है, अगर आपको आपके database को relational database बनाना है, ठीक है, इफ यू वांट टू वर्क ऑन रिलेशनल डेटाबेस, तो ये जो डॉक्टर कोड जो है, ठीक है, उन्होंने 12 रूल्स दिया हुआ है. तो आपके डेटाबेस को वो 12 रूल्स फॉलो करना. इफ योर डेटाबेस सपोर्ट्स और इफ योर डेटाबेस फॉलोज दिस 12 रूल्स, तो यू कैन से योर डेटाबेस इज रिलेशनल डेटाबेस. ओके,
बट पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या, द डेटा will be stored in tables, okay, the data will be stored in tables, मतलब रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में अगर हमारा डेटा स्टोर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस आल्सो कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस, यू कैन उसको बोल सकते हो, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मींस डेटा is stored in tables, rows and collection, row and columns के collection में data store होगा। data कैसे store होगा, in the tables, data stores in the tables, okay, data stores in the tables, data कहाँ पे store होगा, table में store होगा, और वो जो data हम लोग store करें उसको हम लोग क्या बोलेंगे, records, okay। So a relational database also called as relational database management system और SQL databases, जितने भी SQL सॉफ्टवेयर जो है, all are the relational databases, means our data will be stored in the tables, our data will be stored in the tables, okay। अगर हमारा डेटा हम लोग टेबल में स्टोर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशनल डेटाबेस। व्हाई रिलेशनल डेटाबेस, बिकॉज वी आर गोइंग टू शो रिलेशनशिप बिटवीन दी टेबल्स, हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल दैट इज कनेक्टेड विद द डिपार्टमेंट टेबल, कौन सा स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहा है। देन टीचर्स टेबल्स इज कनेक्टेड विद द स्टूडेंट टेबल, कौन से टीचर को क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वी विल शो द relationships between the tables, okay। We can, if we representing our data in the tables, अगर हम tables में data represent करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, relational databases। all the SQL softwares, ठीक है, all the SQL software, structured query language, what is the full form of SQL, structured query language, ठीक है, all are the relational database, मतलब जितने भी ये SQL software है, server है, Oracle database, MySQL, all are the relational databases। कौन से database है, relational, ये जो software हम लोग use करेंगे ना, all are the relational। why, because in all the softwares our data will be stored in form of tables, कौन से form में store होगा, टेबल के फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होगा। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल्स, वी विल इंस्टॉल द MySQL, okay, and in MySQL software our data will be stored in tables format। तो SQL का जो सॉफ्टवेयर है that is relational database, कौन सा टाइप का डेटाबेस हो जाएगा, रिलेशनल। why, because our data is stored in the table format, अगर हमारा डेटा टेबल के फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। क्लियर, ओके। एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन रिलेशनल डेटाबेस, मतलब जो डेटा है दैट इज नॉट स्टोर्ड इन द टेबल फॉर्मेट, टेबल के फॉर्मेट में स्टोर नहीं हो रहा है, द डेटा इज स्टोर्ड इन द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है, या तो फिर ग्राफ और ट्री, ठीक है, दैट अदर, मतलब टेबल की छोड़ के और अदर फॉर्म्स में द डेटा आर storing, तो it's called the non-relational database, okay। The non-relational database or NoSQL database stores the data, NoSQL software, SQL software नहीं, NoSQL जो डेटाबेसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। clear, unlike, however, unlike the relational databases, there are no tables, no rows, no primary keys and no foreign keys। what is primary key, what is foreign keys, we will learn in the next unit, ठीक है। primary keys used to uniquely identify the records, primary, we can use the primary keys and foreign key in the relational database, हम लोग use करेंगे। for example, if we are making the student table, okay, if we are making the student table and student table के form में we are storing the student ID, name, एड्रेस वगैरह हम लोग स्टोर करें, तो आईडी जो है दैट इज अ यूनिक फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, सबका रोल नंबर जो है वो यूनिक है, किसी के लिए सेम नहीं होगा। यू ऑल द स्टूडेंट्स इन SY FY कोई भी क्लासेस में हर एक का रोल नंबर इज डिफरेंट, नेम्स कैन बी सेम, बर्थ डेट कैन बी सेम, ओके, एड्रेस भी मे भी सेम हो सकता है अगर बाजू बाजू में है तो, बट जो आईडी है, आईडी इज डिफरेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, आईडी को प्राइमरी की असाइन करेंगे, मींस थ्रू आईडी वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द डेटा, ओके, वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स। तो keys, primary keys, foreign keys, all these keys we can apply in the relational database, that we will learn in the next unit। तब उसका छोड़ दो। नॉन रिलेशन डेटाबेस में हम लोग कीज यूज नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर नो टेबल्स, नो रोज, नो प्राइमरी, कुछ नहीं होगा। Instead, the relational database uses storage model optimized for specific requirements of the type of data being stored. Okay, means data will be stored in the documented format, tree format or graph format, you can say। graph के जो हमारा graph even
आपको पता होगा ग्राफ, जब क्रिकेट मैच वगैरह में ग्राफ थ्रू दिखाते हैं ना कि ये कितना रन हुआ, कौन से क्रिकेटर ने कितना किया, तो दैट इज ग्राफ के फॉर्म में हम लोग डेटा स्टोर करें, दैट इज अ नॉन रिलेशन डेटाबेस। मतलब टेबल में डेटा स्टोर नहीं हो रहा है और कोई फॉर्म में डॉक्यूमेंट हो गया या तो कोई भी फॉर्मेट में डेटा स्टोर, इट इज कॉल्ड दी नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो all these softwares are the known relational database. MongoDB. MongoDB is a software. जैसे SQL is a software है, but if we are using the SQL software, तो our data will be stored in table के format में store होगा. And MongoDB is again software है database के लिए, ठीक है। ये जो database है that will store the data जो है वो table के form में नहीं करेगा, ओके, डॉक्यूमेंट टाइप के उसमें डेटा स्टोर करेगा। if we are storing the data in this software, if we are using this software for creating our database, our जो data है that will be not stored as a table, वो document के format में store करेगा। then Apache, Cassandra, Redis, Couchbase and Apache HBase all are the known SQL databases। कौन से databases है? known SQL database। if we use this software, अगर हम लोग ये सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो टेबल के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, टेबल के फॉर्म में नहीं होगा, जस्ट डॉक्यूमेंटेड या तो ग्राफ के फॉर्म में डेटा विल बी स्टोर। क्लियर व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस, व्हाट इज नोन रिलेशनल डेटाबेस? सिंपली इन अ वन वर्ड यू कैन रिमेंबर कि रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या? आवर डेटा विल बी स्टोर्ड इन टेबल फॉर्मेट, आवर डेटा विल बी स्टोर्ड इन टेबल फॉर्मेट and all the SQL software, structured query language, okay, all the SQL software जो है that all software will store data in tables। इसमें स्टोर करेंगे, टेबल में स्टोर करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस। क्लियर स्टूडेंट्स? यस और नो? व्हाट इज रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस? यस और नो? Yes, ma'am. Okay, now tell me what is relational database? बताओ मुझे, what is relational database? Data is stored in table. यस, ओके, बस इतना ही याद रखना है, आपको इतना ही याद रखना है। रिलेशनल डेटाबेस में जो हमारा डेटा है वो टेबल में होगा, एंड नो रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा है वो टेबल के फॉर्म में नहीं होगा। डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट मतलब क्या? ये जो वर्ड में वी आर स्टोरिंग दी डेटा, ये हमारा डेटा इवन टाइप ऑफ नोट्स, ये इन्फॉर्मेशन, ये जो मैं स्टोर करी थी, डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर हो गया। तो नो रिलेशनल में जो डेटा है दैट विल बी स्टोर्ड नोट will be stored in documented structure में store होगा, ठीक है, तो इतना भी आपको याद रखना है। ओके, now our topic is codes where rules। तो code is a person, okay, डॉक्टर of course is a person, okay, उसने क्या किया है? he had defined some rules for proving our database is relational database, ठीक है। हाँ, अगर हम हमारा database जो है relational database है, तो उन्होंने जो rules दिखाया, that rules जो है should be followed by our database। किया, ओके। कोड स्क्वायर रूल्स मतलब क्या? उसने क्या किया है? रूल्स डिफाइन किया है। कोड इज अ पर्सन, हियर डिफाइन सम रूल्स। क्यों डिफाइन किए हैं रूल्स? अगर हमारा डेटा, अगर हम लोग बोल रहे वी आर यूजिंग द रिलेशनल डेटाबेस, तो रिलेशनल डेटाबेस अगर हमारा है तो उसने जो 12 रूल्स किया है दैट all rules should be followed by our database। okay, now we will learn the all these 12 rules। हम लोग देखते हैं ये rules क्या है, ठीक है। one by one we will learn all the rules, just as information you should remember, ठीक है। all these points इसमें कुछ है नहीं, okay। the first rule उसने define किया, that is information rule, that is the information rule। the data stored in a database may be user data or metadata। okay, users data मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट, टीचर्स, टेबल्स, ऑल फॉर यूजर डेटा। एंड मेटाडेटा मतलब क्या? डेटा अबाउट द डेटा, किसी का डिटेल डिस्क्रिप्शन। ओके, इफ यू आर स्टोरिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन of anything, it is called metadata। must be a value of some table cells, everything in a database must be stored in a table format, that is the first rule of the relational database। okay, रिलेशनल डेटाबेस का फर्स्ट रूल क्या है? इंफॉर्मेशन रूल। मतलब हमारा जो डेटा है, ओके, एवरीथिंग इन डेटाबेस मस्ट बी स्टोर्ड इन अ टेबल फॉर्मेट। वन लाइन यू कैन रिमेंबर दिस, एवरीथिंग इन अ डेटाबेस मस्ट बी स्टोर्ड इन अ टेबल फॉर्मेट। इंफॉर्मेशन रूल फर्स्ट रूल उसने डिफाइन किया है डॉक्टर कोड ने। ओके, हमारा जो डेटाबेस है, जो हम लोग डेटाबेस बना रहे हैं, वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए? टेबल के फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट रूल। मतलब कॉलम्स एंड रो शुड बी देयर, columns and row should be there। metadata मतलब डिटेल डेटा,
डेटा अबाउट द डेटा, ठीक है, कोई चीज का हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग इफ वी आर स्टोरिंग, ओके, टेबल है तो फॉर एग्जांपल टेबल है तो टेबल रिलेटेड अगेन डिटेल्स में हम लोग डेटा को स्टोर करें, ओके, तो डिटेल्स में जो हम लोग डेटा स्टोर करें कि डेटा जो है उसका अगेन डेटा, ओके, डिटेल्स डेटा इफ वी आर स्टोरिंग इट्स कॉल्ड द मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब क्या है, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी डेटा, उसको हम लोग बोलेंगे मेटा डेटा, ओके। स्टूडेंट आईडी हमारा क्या हो गया, डेटा, बट स्टूडेंट आईडी का भी अगेन डिटेल्स में, मतलब स्टूडेंट आईडी जो करंट ईयर के स्टूडेंट उनका आईडी डिफरेंट है, देन 2016 वो स्टूडेंट्स उनका आईडी अलग है, तो वो आईडी रिलेटेड अगेन हम लोग डिटेल्स में डेटा स्टोर करें, ओके, तो वो हमारा क्या हो गया, मेटा डेटा। तो डेटा अबाउट द डेटा इज कॉल्ड द मेटा डेटा, ओके, डिटेल्स डेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डेटा, ओके। तो इंफॉर्मेशन रूल में क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन रूल आवर डेटाबेस मस्ट बी स्टोर्ड इन टेबल फॉर्मेट, दैट इज द फर्स्ट रूल। Then what is the second rule? Guaranteed access rule, okay, guaranteed access rule, every single data element, okay, every single data element or value you can say is guaranteed to be accessible logically with the combination of table name, primary key मतलब row value and attribute name. No other means such as pointer can be used to access data. Okay, the first according to first rule हमारा जो डेटा है वो टेबल के फॉर्मेट में होना चाहिए, ओके। नाउ अभी क्या करना है, डेटा हमारा टेबल के फॉर्म में स्टोर है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर है। नाउ वी वांट टू एक्सेस दैट डेटा, ठीक है, अभी हमको डेटा को एक्सेस करना है, मींस कुछ अपडेट करना है, इफ यू वांट टू चेंज द डेटा रिकॉर्ड्स इन टेबल्स, या तो कुछ किसी का एड्रेस फोन नंबर चेंज करना है, आईडी चेंज करना है, जो भी इफ यू वांट टू मॉडिफिकेशन कुछ करना है, एक्सेस करना है, डेटा रिट्रीव करना है, ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करना है, हाउ वी विल एक्सेस द डेटा यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल नेम, प्राइमरी की मतलब रो वैल्यू एंड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल कोई मुझे आके बोलेगा मैम मुझे मेरा डेटा अपने डेटाबेस में चेंज करना है, आई वांट टू चेंज माय फोन नंबर, तो हाउ आई विल चेंज, मैं कैसे चेंज करूंगी कि जो स्टूडेंट है उसका आईडी आई विल यूज, ओके, उसका नेम तो मैं नहीं करूंगी, तो पॉसिबिलिटी है कि देयर शुड बी डुप्लीकेट्स नेम इन द टेबल, ओके, देयर विल बी डुप्लीकेट नेम्स इन द टेबल हो सकता है, तो व्हाट आई विल डू, तो मैं क्या करूंगी, उस स्टूडेंट को पूछूंगी व्हाट इज योर रोल नंबर, तो बताएगा 10, तो आई विल यूज द 10 रो वैल्यू, ठीक है, प्राइमरी की मतलब आईडी इज अ प्राइमरी की हो गया, उसका रो वैल्यू हो गया, ठीक है, एट्रीब्यूट नेम, ओके, एट्रीब्यूट नेम मतलब कॉलम नेम के आईडी 10, आईडी को मैंने क्या दिया, प्राइमरी की असाइन किया, यूनिकली असाइन किया, तो आई विल एंड उसका जो डेटा है कौन से टेबल में, स्टूडेंट के टेबल में, आईटी के स्टूडेंट के टेबल में, तो मैं उसको कैसे एक्सेस करूंगी, आईटी स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर 10 है, उसका मुझे फोन नंबर चेंज करना है, तो आई विल एक्सेस द डेटा लाइक दिस, ओके, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल नेम, उसका रो नेम, कॉलम नेम यूज करके आई विल चेंज द डेटा, आई विल एक्सेस द डेटा, वो हमारा हो गया गारंटेड एक्सेस टू। पॉइंटर्स वगैरह यूज नहीं करना है, ओके, नो एनी अदर कंसेप्ट्स विल बी यूज्ड टू एक्सेस द डेटा, ओके, पॉइंटर्स वगैरह आपने पढ़ा, पॉइंटर्स इज यूज्ड टू एक्सेस द वेरिएबल्स, ओके, इन द C++ लैंग्वेज में आपने पढ़ा कि पॉइंटर, व्हाट इज द यूज ऑफ पॉइंटर टू एक्सेस द वेरिएबल्स, ओके, वेरिएबल्स को मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हमने पॉइंटर यूज किया, बट इन द डेटाबेस वी कैन नॉट यूज द पॉइंटर्स। रिलेशनल डेटाबेस में अगर हमको डेटा एक्सेस करना है तो वी हैव टू यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल नेम और कॉलम नेम एंड रो वैल्यू, ठीक है, रो वैल्यू मतलब क्या होगा, रोल नंबर 10, ठीक है, उसका रो वैल्यू दैट इज रो हो गया, उसका रिकॉर्ड हो गया कि रोल नंबर 10 का रिकॉर्ड मुझे चेंज करना है, क्या चेंज करना है, उसका फोन नंबर, तो फोन नंबर क्या हो गया मेरा, कॉलम वैल्यू, फोन नंबर इज अ कॉलम वैल्यू, ठीक है, एंड व्हाट इज द टेबल नेम, स्टूडेंट टेबल, तो टेबल नेम हो गया, तो यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन आई कैन चेंज द डेटा, ओके, अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे यस कि हमारा जो डेटाबेस है दैट इज रिलेशनल डेटाबेस। क्लियर, क्लियर, यस और नो, समझ में आ रहा है, Can you repeat, ma'am, once again? ओके, ओके, व्हाट इज द फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल क्या है कि डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन टेबल फॉर्मेट, ओके, देन सेकंड रूल क्या है कि हाउ टू एक्सेस द टेबल डेटा, ठीक है, जो हमने टेबल में जो डेटा स्टोर किया उसको एक्सेस कैसे करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस, कि जो डेटा है उसको कुछ मॉडिफिकेशन करना है या तो उसको कुछ रिट्राइव करना है, उसको डिलीट करना है, वो सारी चीजें हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है,
तो टेबल में हम लोग डेटा अगर एक्सेस करना है तो वी हैव टू यूज, ओके, हमको क्या रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन यूज करके उसको एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल अजय का रोल नंबर 6 है, ठीक है, तो अजय मुझे आके बोलेगा मैम मुझे मेरा ईमेल आईडी चेंज करना है, ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओपन द टेबल नेम की जहाँ पे, सॉरी, आई विल फाइंड द टेबल नेम की जहाँ पे अजय का डेटा स्टोर है। तो अजय का डेटा कौन से टेबल में स्टोर होगा, फॉर एग्जांपल SYT के टेबल में स्टोर होगा, तो आई विल ओपन द SYT टेबल। ओके, देन मुझे अजय ने क्या बोला, अजय का नेम, ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 अजय है क्लास में, तो मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगी कि यही अजय है उसका, जिसने मुझे बोला कि मैम मेरा ईमेल आईडी चेंज करना है, तो आई विल यूज अजय आईडी या तो रोल नंबर। क्या मैं यूज करूंगी, रोल नंबर, व्हाई, बिकॉज रोल नंबर क्या होगा, यूनिक होगा। हर एक स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट हैज यूनिक रोल नंबर। हर एक, अगर 3 अजय भी है तो भी तीनों अजय का रोल नंबर तो अलग अलग ही होगा। तो मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगी, मुझे कौन सा डेटा चेंज करना है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रो वैल्यू, ठीक है, मतलब उसका प्राइमरी की मैंने किसको असाइन किया, आईडी, तो मैं 6 रोल नंबर का क्या चेंज करूंगी, एट्रीब्यूट नेम, ओके, कॉलम वैल्यू आई विल चेंज, ओके, मतलब उसका क्या चेंज करना है मुझे, ईमेल आईडी, अजय का फोन नंबर भी स्टोर है, आईडी भी स्टोर है, एड्रेस भी है, पिन कोड भी है, फोन नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, उसको क्या चेंज करना है, ईमेल आईडी, तो आई विल चेंज दी अजय ईमेल आईडी। तो मैंने उसको कैसे एक्सेस किया, टेबल नेम प्लस रो वैल्यू प्लस कॉलम वैल्यू थ्रू मैंने उसको क्या किया, एक्सेस किया, ठीक है। तो दैट इज अ गारंटेड एक्सेस रूल, उसको क्या बोलते हैं, गारंटेड एक्सेस रूल, कि दिस इज अ वे टू एक्सेस द डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस टेबल, ओके, रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को ऐसे एक्सेस करते हैं, पॉइंटर्स वगैरह यूज करके एक्सेस नहीं, वी कैन नॉट एक्सेस यूजिंग द पॉइंटर्स। क्लियर, क्लियर, yes or no? Yes, ma'am. Clear. Yes. Okay, now what is the third? Yes, ma'am. Yes. Okay. What is third rule? The third rule is systematic treatment of null values. Okay, systematic treatment of null value. If we are storing our data in table format, ठीक है, टेबल फॉर्मेट में हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं, मतलब रिलेशनल डेटाबेस हम लोग बना रहे हैं, तो जो नल वैल्यूज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल, मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल डेटा इज मिसिंग, फॉर एग्जाम्पल टेबल में हमने डेटा मिस कर दिया, मतलब डेटा एंटर नहीं किया, या तो डेटा पता नहीं है, या तो रिमूव हो गया, दैट इज अ नल वैल्यूज, ब्लैंक वैल्यूज, ओके, या तो वो डेटा है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेबल बनाया स्टूडेंट, in the student table I had declared student ID, मतलब roll number, student name, okay, student name, student address, phone number, phone number 1, phone number 2, email ID 1, email ID 2, ठीक है, ऐसे मैंने कॉलम्स बनाए। तो अगर कोई कॉलम जो है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 है, उसने अपना आईडी डाला रोल नंबर 1, एंटर किया, नेम एक ही उसके पास, फोन नंबर एक ही, ईमेल आईडी, तो सेकंड जो कॉलम मैंने बनाया था फोन नंबर एंड ईमेल आईडी के लिए, दैट विल बी ब्लैंक, वो क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नल वैल्यूज, ओके, नल वैल्यूज, यस, एम्प्टी सेट, यस अरुण, एम्प्टी सेट्स, जो नल वैल्यूज जो है, ठीक है, वो नल्स वैल्यू विल बी सिस्टमेटिकली ट्रीटेड, वो कैसे होना चाहिए, उसको सिस्टमेटिक, मतलब उसको दिखाना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे डेटाबेस में हम लोग कोई नल वैल्यू है तो उसपे ब्लैंक्स वैल्यू है, एम्प्टी वैल्यूज है, टेबल्स में जो कॉलम रोज जो है दैट इज एम्प्टी है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वहां पे NULL नल लिख देंगे, सारा जितना भी एम्प्टी सेल्स जो है, ओके, उसमें हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट द NULL नल, या तो फिर डैश कर देंगे, एक कॉमन, कि वो देख के समझ में आएगा, यस दिस इज अ एम्प्टी है, नल है, इसमें डेटा नहीं है, डेटा मिसिंग है, ठीक है, तो हमको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सिस्टमेटिक वे में जो नल उसको क्या करना है, हैंडल करना है, क्लियर, तो ये दैट इज अ थर्ड रूल, द नल वैल्यूज इन अ डेटाबेस मस्ट बी गिवन अ सिस्टमेटिक एंड यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 है, उसने अपना आईडी डाला, नेम डाला, फोन नंबर 1 डाला, ईमेल आईडी डाला, ईमेल आईडी डाला, सेकंड फोन नंबर एंड सेकंड ईमेल आईडी उसने ब्लैंक छोड़ दिया। देन रोल नंबर 3 है, उसने भी ऐसे ही किया, तो जितने भी कॉलम्स ब्लैंक है, हर एक कॉलम जितना नल है, एम्प्टी है, उसमें मैं क्या करूंगी, तो डैश कर दूंगी, या तो आई विल राइट दी नल, या तो आई विल राइट दी एम्प्टी, जो भी मैं करूंगी वो हर एक कॉलम्स के लिए क्या होना चाहिए, हर एक सेल्स के लिए क्या होना चाहिए, दैट शुड बी सेम फॉर ऑल दी सेल्स के लिए, तो वो देख के उनको समझ में आएगा ये इस पे जहां जहां भी डैश किया है वो सारे क्या है, नल वैल्यूज है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर एक मिसिंग, एक नल वैल्यू तो उसमें मैं डैश करी हूँ, सेकंड नल वैल्यू उसमें मैं एम्प्टी लिख रही हूँ, थर्ड है कुछ ब्लैंक है तो उसमें मैं कुछ और टाइप करूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। जितने भी नल्स वैल्यू है, जितने भी एम्प्टीज
है सेल्स, उसमें सब में मैं एक कॉमन चीज ही लिखूंगी, जैसे एब्सेंट। ओके, फॉर एग्जांपल अभी तो हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस लेते हैं, बट इन दी क्लास फिजिकल क्लासेस में हम लोग कैसे अटेंडेंस लेते थे? हाँ, अटेंडेंस शीट में। तो जितने भी स्टूडेंट एब्सेंट है रोज या तो मंथ में, जहाँ पे वहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे? ए। तो हमको समझ में आता था यस, ए फॉर एब्सेंट, मतलब दैट इज अ सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट फॉर एब्सेंटी स्टूडेंट्स की यस, wherever A is there, तो इट्स मींस के स्टूडेंट इज एब्सेंट, एंड इफ P मतलब क्या? प्रेजेंट। तो वो क्या हो गया? पूरा सेम हमने क्या किया उसको, शीट को मेंटेन किया। तो सेम इन केस ऑफ डेटाबेस, इफ एनी सेल इज एम्प्टी, ओके, इफ एनी सेल इज एम्प्टी इन डेटाबेस, तो और वो सेल को हम लोग कैसे करेंगे? हर एक सेल को सेम ट्रीटमेंट देंगे, मतलब सेम उससे आइडेंटिफाई करेंगे, या तो एन डबल एल नल वी विल राइट, अदरवाइज डैश वी विल डू, जो भी हमको करना है, बट सेम करेंगे इनके पूरा टेबल में। क्लियर? इट इज अ रूल ऑफ relational database management system. If we are making table, okay, if we are using RDBMS, relational database management system, तो ये होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ रहा है? दिस इज अ कोड्स, जो पर्सन कोड्स, जो डॉक्टर कोड है उसने ये बनाया है रूल्स। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? क्या है रूल नंबर 4? एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग्स। Active online catalogs. The structure description of the entire database must be stored in an online catalog known as data dictionary. Okay, जो भी डेटा पे आप लोग काम कर रहे हो, okay, जो भी सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, तो आपका जो डेटा है दैट विल बी स्टोर्ड एज अ ऑनलाइन, वो डेटा ऑनलाइन स्टोर होना चाहिए एज ऑनलाइन कैटलॉग, मतलब ऑनलाइन स्टोर होना चाहिए। उसका मतलब होता है डेटा डिक्शनरी, मतलब इन केस अगर आप वो डेटा लॉस हो गया तो आप उसको ऑनलाइन नेट थ्रू उसको रिकवर, यू कैन डू द रिकवर। ओके, एंड ओनली ऑथोराइज्ड यूजर्स कैन यूज दैट ऑनलाइन डेटा। ओके, तो ये हो गया एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग। ऑनलाइन यू कैन नाउ, अभी आप लोग आपका जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो, बहुत सारे ऐप है थ्रू विच यू कैन आपका जो डेली रूटीन से वो स्टोर कर सकते हो। बहुत सारे नोट्स अवेलेबल, ऑनलाइन नोटबुक होता है कि जिसमें हम लोग हमारा जो है ना रिमाइंडर्स वगैरह सेट करके रखते हो। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारा डेटाबेस जो है दैट इज हम लोग यूज करें, तो वो कैसे होना चाहिए? ऑनलाइन भी स्टोर होना चाहिए। सो इन फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वी कैन रिकवर फ्रॉम दैट ऑनलाइन डेटा। उसको क्या बोलते हैं? डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी, the structured description of entire database. Okay, the structured description of the entire database must be stored in an online catalog. ओके, ऑनलाइन जो हमारे हम जो डेटा पे काम करें दैट शुड बी स्टोर्ड इन ऑनलाइन कैटलॉग, उसको बोलते हैं डेटा डिक्शनरी। ओके, व्हिच कैन बी एक्सेस बाय ऑथोराइज्ड यूजर, जो ओनली ऑथोराइज्ड यूजर ही एक्सेस कर पाएंगे, हर एक उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, परमिशन, जिसको भी परमिशन है ओनली दैट यूजर विल यूज दैट डेटा डिक्शनरी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल फोन का डिक्शनरी हमारा होता है, ठीक है, वी नो दी फोन, पहले फोन का डिक्शनरी आते थे, पहले, अभी तो नहीं है बट पहले। तो ठीक है, तो वो डिक्शनरी में क्या था? हर एक नंबर्स उसमें था, जितने भी नंबर्स हैं, लैंडलाइन नंबर्स है तो कोई भी नंबर्स वो डिक्शनरी में स्टोर होता है। वी कैन फाइंड, अगर हम भूल गए, ओके, अगर हम भूल गए कोई नंबर तो वी कैन फाइंड फ्रॉम दैट डिक्शनरी। तो सेम डेटाबेस का जो है, ठीक है, वही डेटाबेस में कि जो पूरा डेटाबेस जो है दैट विल बी स्टोर्ड एज अ ऑनलाइन स्टोर होना चाहिए। तो अगर हमको कोई जरूरत पड़ी, अगर हमारा डेटा लॉस्ट हो गया तो वी कैन रिकवर फ्रॉम दैट ऑनलाइन कैटलॉग। ओके, तो दैट इज अ रूल। यस, यस अरुण, कुछ मैसेज टाइप किया है क्या? Okay, active online catalog, the structured description of the entire database must be stored in an online catalog. क्या बोला है? must be होना ही चाहिए if you are working, okay, if you are working on the relational database management system, तो आपका जो database है वो online क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? स्टोर होना चाहिए, ऑनलाइन वो स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका हो गया एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग इफ यू आर यूजिंग द ऑनलाइन डेटाबेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जूम हम लोग करते हैं, ठीक है, इफ वी आर परचेसिंग लाइसेंस वगैरह हम लोग जूम का परचेस करेंगे, तो आई कैन रिकॉर्ड योर दिस लेक्चर ऑन दी जूम वेब पे, मैं ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पे वेब पे मैं उसको स्टोर कर सकती हूँ। अगर सिस्टम में स्पेस नहीं है तो, बट मेरे पास लाइसेंस वर्जन होगा तो वेन एवर आई वॉन्ट दैट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो आई कैन उसको मैं रिट्राइव कर सकती हूँ फ्रॉम दी जूम वेब पोर्टल में से, वेब पोर्टल में से। अगर मतलब क्या हो गया? ऑनलाइन जो है वो स्टोर हो रहा है डेटा, जूम का जो ऑनलाइन डेटा है, जो भी हम लोग काम करें, ऑल आर स्टोरिंग इन जूम का वेब
पोर्टल में स्टोर होता है। तो सेम वैसे जो डेटा हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक, जो डेटाबेस में वी आर वर्किंग इन रिलेशनल डेटाबेस, तो वो कैसे होना चाहिए, ऑनलाइन स्टोर होना चाहिए। ओके, उसको बोलते हैं एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग। ओके, एंड आगे क्या है, यूजर्स कैन यूज द सेम क्वेरी लैंग्वेज टू एक्सेस द कैटलॉग which they use to access the database itself. Okay, users can use the same query language. What is query language? मतलब डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए लैंग्वेज है, दैट हम लोग वी विल कवर इन टुमारो। ठीक है, हमारा कल से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, तो आपको समझ दिखाऊंगे मैं व्हाट इज अ लैंग्वेज, हाउ टू एक्सेस द डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट द टेबल्स। ठीक है, देयर इज अ लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज में कमांड्स है, थ्रू कमांड्स वी विल क्रिएट अवर डेटाबेस। तो जो हम लोग ऑफलाइन में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन में जो वे से लैंग्वेज हम लोग यूज करें डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, तो बनाने के लिए सेम लैंग्वेज होना चाहिए ऑनलाइन कैटलॉग में डेटा को एक्सेस करने के लिए। ओके, दैट इज द एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग। क्लियर? यस और नो? ऑल आर दी रूल्स। ओके, जब मैं आपको बता रही हूँ ना, वो रूल्स है, वो डिफाइन किया है डॉक्टर कोड्स ने। तो ये जो रूल्स है वो क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। ओके, कौन किसको फुलफिल, कौन करेगा ये फुलफिल? हमारा डेटाबेस है। तो हमारा डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस है। अगर हम लोग हमारा डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर करें, या स्टोरिंग अवर इन टेबल फॉर्मेट में हम लोग स्टोर करें, और हमारा जो डेटाबेस ये सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, तो हम लोग करें, वी कैन से दैट वो डेटाबेस इज रिलेशनल डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस है? रिलेशनल डेटाबेस। तो ऑल दिस रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय आवर डेटाबेस। ठीक है, हम जो डेटाबेस बनाएंगे वो सारे रूल्स, ये जो सारे रूल्स है वो हमारे डेटाबेस क्या करना चाहिए, फॉलो करता होना चाहिए। क्लियर? जस्ट आपको एक लाइन में याद रखना है रूल्स। ठीक है, इतना थियरी नहीं है, तो जस्ट रिमाइंड इन वन लाइन, जैसे आपको याद रहे। व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। comprehensive data some language sub language rule, sorry, sub language rule. A database can only be accessed using a language having linear syntax that supports data definition, data manipulation, and transaction management operation. Okay, this language can be used directly or by means of some application. If the database allow access to data without any help of this language, then it is considered as violation. For example, डेटा क्रिएट करने के लिए वी हैव द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब क्रिएट इज अ कमांड। ओके, इंसर्ट, अगर हमको डेटा मैनिपुलेट करना है, अपडेट करना है, तो अपडेट इज अ कमांड। डिलीट इज अ कमांड। ओके, कोई ट्रांजेक्शन करना है तो रोल इन रोल आउट, ऑल आर द कमांड्स। तो ऑल आर द कमांड्स आर प्री डिफाइंड है। ओके, जो लैंग्वेजेस पहले से डिसाइडेड है। इफ यू वांट टू वर्क ऑन डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, तो उसका लैंग्वेज डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस इज अ लैंग्वेज, तो C++ लैंग्वेज यूज करो तो उसका ही सिंटैक्स यू हैव टू फॉलो। इफ यू आर HTML लैंग्वेज यूज करो वेब प्रोग्रामिंग के लिए, तो यू हैव टू राइट HTML टैग्स ही आपको लिखना है, और कोई टैग्स लिखोगे तो नहीं चलेगा, वो वर्क नहीं करेगा। तो सेम वैसे ही डेटाबेस हम लोग जब यूज करें, अगर वो रिलेशनल डेटाबेस है, तो उसके लिए जो लैंग्वेज डिसाइड किया है, ठीक है, जो लैंग्वेज बनाया है, कौन सा लैंग्वेज बनाया है, वी विल लर्न। ओके, हम लोग पढ़ेंगे, डेटाबेस लैंग्वेजेस करके टॉपिक है ही। ठीक है, इन द नेक्स्ट यूनिट में मैं वो कवर करूंगी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले, कि विच आर द डेटाबेस लैंग्वेजेस। ठीक है, तो वो लैंग्वेज ही फॉलो करना है, रिलेशनल डेटाबेस को वो लैंग्वेज ही फॉलो करना है। ठीक है, जो बनाया है वो लैंग्वेज ही फॉलो करना है। अगर और कोई लैंग्वेज फॉलो करेंगे तो इट इज कंसिडर्ड एज वायोलेशन। ओके, और कोई लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वायोलेशन, मतलब एरर्स आएगा, वो नहीं काम करने देगा, इट्स वायोलेशन उसको बोलता है। ओके, तो दिस इज द रूल्स। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल्स। जो भी करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफिकेशन करना है, रिट्राइव करना है, तो वो कैसे करना है, जो डेटाबेस का लैंग्वेज है उसका यूज करके ही करना है, और कोई लैंग्वेज यूज नहीं करना है। ओके, इफ वी आर यूजिंग अदर लैंग्वेज, डेटाबेस लैंग्वेज यूज नहीं करना और कोई लैंग्वेज यूज करे, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ वायोलेशन। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? data manipulation language, data definition language, transaction management language, all are the language database का languages है। And under this language there are commands है, अलग अलग commands है, that I will cover in the next lecture में cover करूंगी। ठीक है, but अभी के लिए याद रखो what this rule says, कि ये rules क्या बोल रहा है, बता रहा है कि जो लैंग्वेज डिफाइन किया है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, वही लैंग्वेजेस यूज करना है, और कोई लैंग्वेज यूज नहीं करना है, ओनली डेटाबेस लैंग्वेजेस मस्ट बी यूज्ड। ओके, yes, rejoin करो स्टूडेंट्स, प्लीज रिजॉइन। ओके, रिजॉइन करो। यस, और इसे नेक्स्ट रूल क्या है? व्यू अपडेटिंग रूल्स। ओके, व्यू अपडेटिंग रूल्स।
all the views of database, all views of database, all the views of database which can theoretically be updated must also be updatable by the system. Now what is view? Okay, first of all क्वेश्चन हमको आता है दिमाग में, what is view? तो व्यू मतलब क्या? इफ देयर इज अ लार्ज डेटाबेस, ओके, बहुत बड़ा डेटाबेस है, तो हम लोग सारा डेटा, अगर हमको सारा डेटा की जरूरत नहीं है तो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, जितना कॉलम्स हमको चाहिए ना उसका वी विल क्रिएट दी व्यू। हम लोग क्या क्रिएट करेंगे? व्यू हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम लोग व्यू क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट का आईडी, नेम एंड उसका मार्क्स चाहिए,